So you are going for bark interview, right? Yes, sir. So you want which subject? Sir, chemical reaction engineering. Okay, so shall we proceed? Yeah, yeah, sure, sir. Please. Tell me the difference between the thermodynamics and the Thermodynamics and the chemical kinetics. kinetics. So the fundamental difference is thermodynamics. What does it say is that about the feasibility of the process, whether the particular process is will be happening or not. If it is happening, then how much energy is to be supplied, the energy calculations, the minimum amount of the maximum amount of work that the system can maximum amount of work that the system can do, and all of this about the feasibility of the system, or about the occurrence, or uh, about the feasibility of occurrence in short. But in the kinetics, the time part is very very important, and it is concerned with time. So when we say about the kinetics, so the time is the main ingredient. When we say about the thermodynamics, the feasibility is the main occurrence. The thermodynamics is the basis of kinetics. That if the thing is happening, then we go for the kinetics of it. That is okay. That this thing is feasible. But then there are many other ways in the reality to reach from point A to point B. Like these are two states, and in between the two states, if there is a feasibility of something of happening, then in reality there may be some many part of reaching from point A to point B. So depending on the time, depending on the real situation, there will be the different parts, and kinetics is there to explore these things with respect Okay. to time. Okay. Okay. Tell me what are the different factors that affect the rate of a reaction? What are the different factors that affect the rate of the reaction? Yes. So fundamentally, taking the rate equation as a basis. So when we talk about the rate of a chemical reaction that is happening, so Okay. the first thing is the okay. Let me write the equation: K into Ca power n. Okay, and Ca concentration. So essentially there are parameters like constant. The rate depends on the rate constant and the concentration and the order of the reaction. The nature of the reaction is important. That is defined by the order, which order the reaction is following. The rate Okay. depends on the order of the reaction. Second part, the concentration. Okay. So when we take a particular reactant A and it is getting converted into product B or any other product, so that depends on the concentration of A. If the order is positive, there is more concentration, then the rate will be higher. Third thing, the temperature. If there is more temperature, then more rate in general. For more rate in general for constant density systems. And the fourth one is the activation energy. The activation energy can be easily covered with increasing the temperature and by the addition of the catalyst. The addition of the catalyst lowers down the activation energy. So the rate depends on the activation energy, the temperature, and the concentration. अच्छा. Activation energy क्या होता है? So the activation energy is the amount of the energy that the reactant molecules should have to. It is a sort of a barrier, sir, that the reactant molecule should cross to get converted into the products. So there is some sort of, there is a barrier in between. So Hmm. here there is, say for example, there is a reactant here. There are products here. So whenever you want to, whenever this reactant want to be converted into this product, then there is a barrier in between like this. So if Okay. the reactants are getting converted into product, there is in between one transition state. So if you want to get this converted into this, so you have to like cross this barrier. So this is a sort of barrier. This is the activation energy that the reactant should have. Okay. Draw करिए तो क्या बता रहे हैं आप? Okay.
Hmm, Sir, so is it visible? हाँ, ये क्या है? एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ओके। एक्टिवेशन एनर्जी, हाँ, राइट साइड में ये सॉरी, हाँ, एक्टिवेशन एनर्जी बनाई हुई है। सो बॉटम बॉटम में हमारे पास में रिएक्टेंट्स है, हमने उनको एनर्जी दी और एक रिएक्शन को जितनी एक्टिवेशन एनर्जी थी उनको अगर वो सरपास करते हैं तो रिएक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज दे विल जस्ट कम डाउन फॉलोइंग द सेम पाथ अगर उनके पास में थोड़ी भी एनर्जी कम है तो। सो ये प्रैक्टिकली स्पीकिंग, कौन सा रिएक्शन का आपका रिएक्शन कोऑर्डिनेट ग्राफ है ये? एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक। रिएक्टेंट के पास में कम एनर्जी है, रिएक्टेंट के पास में कम एनर्जी है, प्रोडक्ट के पास में ज्यादा एनर्जी है। सर इट इज अ सॉर्ट ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक है। ओके। सो रिएक्टेंट के पास कम है, प्रोडक्ट के पास ज्यादा है, तो हमें हीट ऐड करनी होगी, सो एंडोथर्मिक। थर्मल एनर्जी ऑफ द टोटल थर्मल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितना होगा बताइए तो उसमें ग्राफ। ग्राफ में टोटल थर्मल एनर्जी ऑफ सिस्टम, यस। टोटल थर्मल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल थर्मल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, थर्मल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल थर्मल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सर कौन से स्टेट पे, जैसे पूरी कन्वर्जन स्टेट पे, या जैसे कौन से स्टेट पे? आई कांट गेट इट, क्योंकि इनिशियली हमारे पास में रिएक्टेंट है, बाद में फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है ऐसे। सो अगर हमारी रिएक्शन कंप्लीशन पे पहुंच गई है तो टोटल एनर्जी रहेंगी वो हमारी प्रोडक्ट के साथ होगी, तो दैट विल बी द थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में सुना है क्या? थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में सुने हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी, हाँ, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज नीडेड। सर पूरी तरह से नहीं पता, आइडिया नहीं है इस बारे में। नहीं पता है, ठीक है। अच्छा, वो ग्राफ में मुझे बताइए आपका एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट कौन सा होगा और एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट कौन सा होगा? सर एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ऊपर वाला है और एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट और एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट नीचे वाला है। एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ऊपर वाला है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट नीचे वाला है। यस। गलत है। गलत है। फिर एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट और एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट बताइए कौन सा है? सर जो बाहर वाला है, ये लाइन जो है, ये वाली लाइन, ये एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, और जो अंदर वाली लाइन है ये एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है। वो तो एक्टिवेशन एनर्जी पूरा रिएक्शन का है, बीच वाला। सर बट प्रोडक्ट को अगर रिएक्टेंट में जाना है तो उसको इतना बैरियर क्रॉस करना होगा, तो ये उसकी एक्टिवेशन एनर्जी हुई। और जब जब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होगा तो ये बड़ा वाला एक्टिवेशन एनर्जी होगा, नीचे से ऊपर तक का पूरा। तो ये रिएक्शन का होगा अगर हम रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, और प्रोडक्ट का अंदर वाला होगा। ओके, तो रिएक्टेंट यस। आपको कहाँ से आता है? रिएक्टेंट तो और नीचे से आ रहा है ना, तो बीच में क्यों रिएक्टेंट रुका? यहाँ से। हाँ, तो आपका जो एक्टिवेशन एनर्जी है तो वहां से स्टार्ट होगा ना।
एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट कहाँ, यहाँ से स्टार्ट होगा सर। हाँ, तो वो एरो मार्क वहां तक है आपका? हाँ, ये जो है ये मैंने थोड़ा अलग बनाया सर, मैं यहाँ बनाता हूँ। देख, मैंने यहाँ पे बना दिया था ये चीज, राइट साइड में बना दिया था मैंने, और यहाँ पे बनाई। ये रिएक्टेंट की है और अंदर वाली प्रोडक्ट की है। ओके, वो बीच वाला आपका उतना एक्टिवेशन एनर्जी है, और नीचे वाला जो डिफरेंस हो रहा है वो क्या है? नीचे वाला, ये वाला डिफरेंस, वहां ये से वाला लेके, डिफरेंस, हाँ 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 हाँ, ये तो सर डेल्टा एच है हमारा, रिएक्शन का डेल्टा डेल्टा एच, एच। हाँ, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है ना? एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, हाँ, अकम्पोनेंट बाय द रिएक्शन, हाँ। ओके, तो आपका एक प्रोडक्ट का एक होगा एक्टिवेशन एनर्जी, एक रिएक्टेंट का एक्टिवेशन एनर्जी होगा, है ना? यस, उन दोनों का डिफरेंस डेल्टा एच। वो किसका, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का या रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट का? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट से, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का आपका होगा डेल्टा डेल्टा एच। एक्टिवेशन एनर्जी। और एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, या एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है फॉर डेल्टा एच आर? और डेल्टा एच सर एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट और होता है। सेम आपका एक्टिवेशन एनर्जी के लिए भी होता है। हम्म, एक्टिवेशन एनर्जी के लिए भी होता है, सेम आपका एक्टिवेशन एनर्जी के लिए होता है, सेम आपका एक्टिवेशन एनर्जी के लिए सोचिए। रिएक्टेंट कर दिया। हम्म, हाँ अच्छा सर। ठीक है, बाद में सोचिएगा। एक बताइए, एक्टिवेशन एनर्जी लो है रिएक्शन का, उसका मतलब क्या है, क्या सिग्निफाई करता है वो? सर लो एक्टिवेशन एनर्जी सिग्निफाइज कि आपको बहुत कम एनर्जी देनी है वो रिएक्शन होने के लिए, या ओके हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि बैरियर कम है, रिएक्शन इजीली पॉसिबल है, रिएक्शन ओके फास्ट होगा अगर हम लोग थोड़ी सी भी उसको हार्श कंडीशन देते हैं। तो जैसे थोड़ा सा अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, या बस ऐसा, या फिर हमने कैटल या फिर उसको कैटलिस्ट की भी जरूरत नहीं होगी ऐसे, अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो। ओके, और एक्टिवेशन एनर्जी हाई है मतलब क्या सिग्निफाई करता है? एक्टिवेशन सर, एक्टिवेशन एनर्जी हाई है इसका मतलब कि इजी कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट ये आसानी से फिजिबल नहीं होगा, हमें बाहर से ज़्यादा एनर्जी देनी होगी, और उसके ही मुकाबले हमें उसका टेम्परेचर बढ़ाना होगा ताकि मॉलिक्यूल्स हायर एनर्जी को क्रॉस कर सके। और ये चीज़ सिग्निफाई करती है कि अगर आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा हार्श हो रही है, जैसे हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो हम लोग कैटलिस्ट के साथ भी जा सकते हैं, जहाँ पे हम लोग इसका एक्टिवेशन एनर्जी गिरा देते हैं by the use of catalyst by providing some alternative path or something. ओके, और कुछ, और कुछ एनी अदर सिग्निफिकेंस? any other significance sir? लो एक्टिवेशन एनर्जी में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हम्म, उसका रेट उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, ओके लेकिन अगर हम हाई एक्टिवेशन एनर्जी में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो दैट इज मोर सेंसिटिव टू टेम्परेचर, क्योंकि इसका रेट जो लोअर एक्टिवेशन एनर्जी वाली लोअर एक्टिवेशन एनर्जी वाली जो रिएक्शन है, इसका रेट ऑलरेडी हाई है, और जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो दैट इज जस्ट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कोलिजन। और जब हम लोग हाई एक्टिवेशन एनर्जी पे जा रहे हैं तो हम लोग ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को लेविटेट कर रहे हैं ताकि वो उस बार के और ऊपर जाए और ऊपर जाए और ऊपर जाए। तो आई थिंक ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी वाली जो है वो ज्यादा सेंसिटिव होगी टेम्परेचर के लिए, हायर टेम्परेचर के लिए। ओके, गुड। Yeah. Okay, suppose you know the reaction, you have a reaction with known kinetics. Okay, you have a reaction with known kinetics, so how will you find activation energy of that reaction? I have the known kinetics of Of a a particular, particular reaction, okay, and how will I find the activation activation energy of energy? that. Okay.
Sir, so when the kinetics of the known reaction is known to us, like the dependence of rate with respect to concentration is known to us. So हम लोग ये करेंगे कि we will have the value of k. हमें kinetics पता है, इसका मतलब हमें k का वैल्यू एट अ पर्टिकुलर रेफरेंस टेम्परेचर हमें पता होगा और हमें उसका रेट और कॉन्सेंट्रेशन कर्व हमें पता होगा. दैट मीन्स हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी पता होगा. तो हम ये करेंगे कि हम उस रिएक्शन को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे आपको, अगर आपको काइनेटिक डाटा आपके पास है तो? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे? ओके सर, सो एक जनरल काइनेटिक्स लेके चलेंगे सर हम. माइनस आर ए इज इक्वल्स टू के सी ए की पावर एन. एक जनरल मॉडल लेके चलेंगे. ठीक है. और हमारे पास में कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम डाटा है सर. एटलीस्ट ये तो होना चाहिए. काइनेटिक डाटा है आपके पास. ठीक है, करिए, बताइए. कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम डेटा है हमारे पास. सो कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम डेटा. अब हर एक टाइम पे हमारे पास what are the different methods to find out the rate of reaction if you have the kinetic data? Okay sir, so one is the integral method, the other is the differential method to find the rate kinetics, to find the kinetics of that particular reaction. और तो इंटीग्रल, हाँ हाँ सर. और कोई मेथड? बस दो ही मेथड है या और भी कोई मेथड है? काइनेटिक्स निकालने के लिए एक तो आपका आपने बोला इंटीग्रल मेथड, दूसरा डिफरेंशियल मेथड, और कुछ मेथड्स? डिफरेंशियल मेथड ये सर एक होती है रिएक्शन ऑफ वेरिएबल ऑर्डर, वो एक होती है. जैसे कोई रिएक्शन जो है एट अ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन वो कुछ हायर ऑर्डर पे हो जाएगी, जैसे उसका कॉन्सेंट्रेशन कम लोअर ऑर्डर पे हो जाएगी, जैसे उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा वो वो हायर ऑर्डर पे चली जाती है. तो वो भी एक तरीका है फाइंड आउट करने का. अगर इन दोनों में इंटीग्रेटेड रेट लॉ और डिफरेंशियल काम नहीं कर रहे तो हम लोग मॉडल फिर चेंज करते हैं. ये दूसरे टाइप का मॉडल है. ओके. इसके साथ में और क्या है? इसके साथ में और क्या है? काइनेटिक मॉडल हम लोग फाइंड आउट करना चाह रहे हैं. काइनेटिक मॉडल हम लोग फाइंड आउट करना चाह रहे हैं. सर टेम्परेचर डिपेंडेंस भी इसमें इन्वॉल्व होगा कि ठीक है, हम यहाँ पे हम लोग ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो हमारे पास में कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का जैसे इंटीग्रल डिफरेंशियल मेथड्स है. इसके लिए अगर हमें टेम्परेचर का डिपेंडेंस भी चेक करना हो क्योंकि वो भी इंटीग्रल मेथड में करना है. ठीक है, इंटीग्रल मेथड में आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है. कैसे निकालते हैं इंटीग्रल मेथड में, ये बताइए. इंटीग्रल मेथड सर, सो इंटीग्रल मेथड में ये होता है कि जैसे एक जनरल रिएक्शन है माइनस आर इज इक्वल टू के सी पावर एन. एक ये जनरल मॉडल अभी कंसीडर करते हैं जिसमें ऑर्डर 1 2 3 nth ऑर्डर रिएक्शन है. तो हम लोग सर इसको इंटीग्रेट करते हैं. जैसे रेट हो गया आपका माइनस डी सी ए बाई डी टी. यहाँ पे हम लोग एप्सिलॉन कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन रिएक्शन के साथ में जो वॉल्यूम डेंसिटी कांस्टेंट डेंसिटी सिस्टम के लिए हम लोग कंसीडर करते हैं. तो एप्सिलॉन आ गया सर. एप्सिलॉन कांस्टेंट डेंसिटी सिस्टम ले रहे हैं सर अभी असम्पशन. ठीक है. तो आपने फॉर्म ऑफ रेट ऑफ इक्वेशन आपने एज्यूम किया, दैट इज माइनस आर इक्वल्स टू के टू द पावर n, राइट? हाँ. उसके बाद क्या इसको सर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं. जैसे ये हो गया तो इसके बाद में हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं. इंटीग्रेशन के बाद में इसका फॉर्म आता है 1/CA पावर n - 1 माइनस 1/CA0 पावर n - 1 इज इक्वल्स टू n - 1 टाइम्स kT. आपके पास तो काइनेटिक डाटा. हाँ सर, आपके पास काइनेटिक डाटा दिया हुआ है ना सर? काइनेटिक डेटा मतलब कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम. हाँ, आपके पास काइनेटिक डाटा है. उसके बाद मैंने पूछ रहा हूँ कि इंटीग्रल मेथड से आप कैसे रेट ऑफ रिएक्शन निकालें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे आप? इंटीग्रल मेथड से कैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे? हाँ, ये सब मेथड्स आपने क्या बताया? ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए इंटीग्रल मेथड, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए. हाँ. तो आप इंटीग्रेट क्यों करने जाएंगे? आपके पास तो एक टेबलेटेड आपके पास डाटा है कंसंट्रेशन और टाइम. आप इंटीग्रेट करना चाहते सर यहाँ पे वो नहीं लगेगा, डेटा में नहीं लगेगा वो. ये तो मेथड्स है बस. इंटीग्रल और डिफरेंशियल मेथड्स है. ये डिपेंड करता है कि सर हमें कोई मैकेनिज्म चेक करना है क्या, कि हमें बस ऑर्डर चेक करना है क्या.
टैब में आपके पास कंसंट्रेशन है, टाइम का डाटा है, आपको ऑर्डर बताना है, तो आप इंटीग्रेट करेंगे, कैसे निकालेंगे ऑर्डर? नहीं सर, यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं लगेगा, पक्की बात है, इंटीग्रेशन नहीं लगेगा। हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ है, हम लोग ठीक है। एक कॉन्सेंट्रेशन पे एक इसका स्लोप निकालेंगे। स्लोप विल बी गिविंग अस द रेट ऑफ द रिएक्शन, और हर ओके। कॉन्सेंट्रेशन में हमें रेट पता होगा। हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास में अभी रेट और कॉन्सेंट्रेशन का डाटा आ जाएगा। तो रेट और कॉन्सेंट्रेशन का डाटा आने के बाद हम लोग ये जो इक्वेशन है हमारी, RA इज इक्वल टू KC पावर n, हम लोग इसमें ln ले लेंगे दोनों जगह। ln ऑफ माइनस RA इज इक्वल टू ln K प्लस n ln CA। अब यहाँ पे हमारे पास में रेट कॉन्सेंट्रेशन आ गया था, हम लोग दोनों का लॉग निकालेंगे, और ln ऑफ रेट को y एक्सिस पे, ln ऑफ कॉन्सेंट्रेशन x एक्सिस पे, जो स्लोप होगा वो हमारा ऑर्डर होगा। ये अप्रोच हम फॉलो करेंगे यहाँ पे। दिस इज द डिफरेंशियल मेथड ऑफ एनालिसिस, ये यहाँ पे चलेगा। और जो इसका इंटरसेप्ट होगा दैट विल गिव द वैल्यू ऑफ ln K, और वहां से हम लोग रेट कांस्टेंट ही बोलते हैं, हाँ, रेट कांस्टेंट निकाल लेंगे। ओके, ठीक है। आपका ये ये बताइए, मतलब जो रिएक्शंस होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन के बीच में डिफरेंस क्या है? मतलब हम लोग कब बोल सकते हैं कि वो रिएक्शन इरिवर्सिबल है? ऐसा कुछ है, कुछ फंडामेंटल यस बताइए। सर, इसमें एक रिवर्सिबल रिएक्शन की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे कंसेप्ट आता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर हमारी बहुत ज़्यादा है, जैसे 10 पावर 10 या उसकी भी बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि रिएक्शन इरिवर्सिबल है। अगर k का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है, इट इज़ ट्रेमेंडसली हाई, और उसका मैग्नीट्यूड अगर 1 के आसपास है, या 1 से थोड़ा नीचे है, या 1 के आसपास है, और अगर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है तो रिएक्शन नहीं होगा। बट अगर 1 या 10 या 100 या इस रेंज में अगर आता है तो इट इज़ रिवर्सिबल काइंड ऑफ रिएक्शन। दैट डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, कोई रिएक्शन 100% कंप्लीशन पे 100% कंप्लीशन पे नहीं जाता है, इसलिए हम लोग ये बेसिस को लेके उसको इरिवर्सिबल टैग देते हैं कि k का वैल्यू बहुत ज़्यादा ऊपर है, इसीलिए हम उसको इरिवर्सिबल मानेंगे। ओके ओके, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कन्वर्जन वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करिए। ओके सर, कन्वर्जन वर्सेस टाइम का ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ओके, इक्वेशन कहता है माइनस ln ऑफ 1 माइनस XA इज इक्वल टू KT। इनिशियल कमेंट है हमारे पास, यहाँ जाएगा। XA का ग्राफ प्लॉट करना है हमको, तो माइनस KT माइनस XA इज इक्वल टू माइनस KT इज इक्वल टू 1 माइनस इक्वल माइनस KT। ठीक है, तो ये हो गया हमारा XA, ये हो गया हमारा टाइम, और ये ऐसे जाएगा। सर ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, ओके, दिख रहा है? सॉरी, इधर आएगा। ठीक है, मैक्सिमम कितना होगा? सर मैक्सिमम इसका लिमिट कन्वर्जन का तो 1 तक होता है मैक्सिमम लिमिट, और ये रीच नहीं करेगा क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो इट विल गो अप्रोचिंग इनफाइनाइट टाइम में 1 तक पहुंच जाएगा। ओके ओके, गुड। अच्छा, स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में सुने हैं क्या? यस सर, स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में सुना है। तो हम लोग कब बोलते हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है? रिएक्शन स्पॉन्टेनियस सर, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ये थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस से आता है कि आपका जो डेल्टा जी है, फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, वहां से आता है इसका बेसिस। अगर डेल्टा जी का मैग्नीट्यूड नेगेटिव है, देन द रिएक्शन इज फिजिबल एंड इट इज स्पॉन्टेनियस। मतलब वो स्वयं ही रिएक्शन जो है वो हो पाएगा। अगर डेल्टा जी
बोलिए। मतलब रिएक्शन नेचुरली ऑकरिंग, स्पॉन्टेनियस का मतलब ये बता रहे हैं ना। ऑकरिंग है, हाँ। या गिव्स फ्री एनर्जी क्या होता है? सर गिव्स फ्री एनर्जी ये ऐसी एनर्जी होती है सिस्टम के अंदर में जिससे सिस्टम वर्क करने के लिए यूज कर सकता है। इसको गिव्स फ्री एनर्जी हम लोग कह सकते हैं। टोटल एंथैल्पी रिप्रेजेंट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। उसमें से वो कुछ एनर्जी अपनी एंट्रोपी बढ़ाने के लिए यूज कर सकता है। दैट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी, दैट इज टी डेल्टा एस। हम लोग लिखते हैं कि जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस लिखते हैं हम लोग। तो टोटल एंथैल्पी में से वो एक टी एस अमाउंट ऑफ एनर्जी खुद के एंट्रोपी बढ़ाने के लिए यूज करता है, और बची जो एनर्जी है फ्री एनर्जी, दैट इज अवेलेबल फॉर कैरिंग आउट सम सॉर्ट ऑफ वर्क। लाइक इन दिस केस हम लोग रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर ये चीज चेंज इन द फ्री एनर्जी अगर ये नेगेटिव है, मतलब पहले सिस्टम के पास ज्यादा एनर्जी थी, बाद में सिस्टम के पास में कम एनर्जी है, डेल्टा जी आपकी नेगेटिव हो गई, इसका मतलब चीज फिजिबल होगी, मतलब वो वर्क करके लोअर एनर्जी स्टेट पे आ जाए फ्री एनर्जी के टर्म्स में। ओके, तो ये आपका जो स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन है, ये आपका हम लोग ऐसा डेल्टा के फॉर्म में क्यों इसको क्राइटेरिया मानते हैं? क्यों नहीं इसको एंट्रोपी के फॉर्म में हम लोग बता सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस है कि नहीं? सर एंट्रोपी के फॉर्म में जैसे हम लोग सर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, अरे यार सर आई एम सॉरी सर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में टोटल एंट्रोपी, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, ये किसी भी प्रोसेस में बढ़ती है। जब हम किसी रिएक्शन की बात कर रहे हैं दैट इज कंसर्न, दैट इज फोकस्ड ऑन अ पर्टिकुलर सिस्टम, तो हमें वहां पे सराउंडिंग में क्या हो रहा है ये भी जानने की आवश्यकता होगी कि सिस्टम में अगर हमारी एंट्रोपी चेंज इतनी है तो सराउंडिंग में कितनी है, सच दैट टोटल कितनी है। बट जब हम लोग डेल्टा जी में जाते हैं तो डेल्टा जी इज मेनली कंसर्न विद सिस्टम ओनली। अगर सिस्टम हमारी वर्क कर पा रही है तो इट नेचुरली सेटिस्फाई द क्राइटेरिया कि टोटल एंट्रोपी बढ़ रही है। इसीलिए डेल्टा जी इज द सोल क्राइटेरिया कि सिस्टम स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं। वाइल एंट्रोपी इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट कि हम लोग सिस्टम और सराउंडिंग को साथ में लें और बाद में फिर यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज निकालें। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट और नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि सराउंडिंग में क्या हो रहा है हमें उसकी भी अकाउंटिंग करनी होगी। ओके ओके कुणाल, नाउ आई एम गिविंग यू द फीडबैक। ओके ओके थैंक यू। गिव्स फ्री एनर्जी का आप देख लीजिएगा, मतलब एक्चुअल में कैसे बोलेंगे, मतलब यू कैन से लाइक इट इज ए थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल that can be used to calculate the maximum reversible work or the maximum useful work that may be performed by a thermodynamic system at constant temperature and pressure। ठीक है, वो आप इक्वेशन में ना जाइए, इक्वेशन में जाएंगे देखिए आप जैसे जैसे इक्वेशन में जा रहे हैं वैसे से आप नया नया चीज दे रहे हो। वहां पर आपने एंट्रोपी पे आपने खुद लाया, एंट्रोपी आपने क्वेश्चन आपने खुद पूछवाया कि एंट्रोपी वाला पूछिए, फिर ये पूछिए सराउंडिंग, फिर आपने थर्मोडायनेमिक्स में आपने खुद लेके गया, है ना। यस तो स्टिक टू द मतलब पिन पॉइंट आंसर देने के लिए आप वो ट्राई करिए, ठीक है। ओके ओके ये हो गया आपका इसका। उसके बाद 1 मिनट, फिर ग्राफ जो भी है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का डिफरेंट, मतलब सी ए वर्सेस टी क्या होगा, कन्वर्जन वर्सेस टी क्या होगा, माइनस आर ए वर्सेस टी क्या होगा, या माइनस आर ए वर्सेस कंसंट्रेशन क्या होगा, ये थोड़ा प्रैक्टिस करके जाइएगा क्योंकि वहां पर आपको ग्राफ करने के लिए, ठीक है, कोई भी यस चीज का ग्राफ बोल सकते हैं वहां पर। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल काइनेटिक्स का डिफरेंशिएट अच्छे से किया आपने। जो फैक्टर्स है, क्या क्या फैक्टर्स आपका रेट ऑफ रिएक्शन को इम्पैक्ट करता है, तो आप बोल सकते हैं कि ये नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हो सकता है, एक आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है। तो आपका टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट है कि नहीं वो हो सकता है, हीट एंड मास ट्रांसफर हो सकता है, ठीक। मास ट्रांसफर आपका हेट्रोजेनियस होगा तो फिर मास ट्रांसफर भी आ जाता है ना। या यस वैसे बताना है आपको। वहां पर आपने एक्टिवेशन एनर्जी सब बोलना स्टार्ट कर दिया, तो आप एक्टिवेशन एनर्जी आप खुद लेके आए वहां पर, समझ में आ रहा है आपको? ओके ठीक है, और एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, तो ये इट इज ए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, बस एनर्जी नहीं है ये। मिनिमम कितना चाहिए, ज्यादा देके यस क्या फायदा, जब मिनिमम में ही कन्वर्ट हो जा रहा है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, तो ज्यादा हम लोग एनर्जी क्यों प्रोवाइड करेंगे, है ना। तो इट इज द राइट 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 मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट ए रिएक्शन, ठीक है।
Yes. ये हो गया आपका। फिर एक्टिव एनर्जी का लो और हाई का क्या सिग्निफिकेंस है वो आपने बाद में पकड़ लिया, जब मैंने पूछा और कुछ बताइए तब आपने बताया सेंसिटिव है, हाई टेम्परेचर में ज्यादा सेंसिटिव होता है रेट ऑफ रिएक्शन, लो Yes. टेम्परेचर में आपका कम सेंसिटिव होता है। फिर ठीक Yes. है, रेट ऑफ रिएक्शन आपका हाई होगा अगर एक्टिव एनर्जी लो होगा, ठीक है, ये सब ठीक है। एंड देन मेथड्स यूज्ड टू एनालाइज द रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या क्या मेथड्स होते हैं। एक तो आपने इंटीग्रल मेथड बोला, ठीक है, फिर डिफरेंशियल मेथड, उसके बाद आपका इनिशियल रेट मेथड होता है, हाफ लाइफ मेथड होता है, फ्रैक्शनल लाइफ मेथड होता है, ये सब आपका मेथड्स है, ठीक है। Okay. Okay. हाँ हाँ. Yes. तो मेथड देख लीजिएगा कैसे होता है इंटीग्रल मेथड में, कैसे हम लोग एक एज्यूम करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन एज्यूम कर ले रहे हैं, उसके बाद उसको Yes. उसको हम लोग फिर प्लॉट कर रहे हैं, अगर वो स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो हाँ वही ऑर्डर है, फिर इसमें नहीं आ रहा है तो फिर हाँ हम लोग ऑर्डर अप टू एज्यूम करेंगे, फिर उसको प्लॉट करेंगे, अगर वो फिर स्ट्रेट लाइन आ रहा है ये ऑर्डर है, उसमें से एक करते जाते हैं। तो ये सब जो मेथड है, क्योंकि ये सब मेथड्स आपको वहां पर पूछेंगे वो, मतलब बोलेंगे क्या कैंटीन आ जाती है आपको, बोलेंगे कि कैसे कर सकते हो बताओ, कैसे एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हो लैब में ये बताओ, ठीक है। तो उसके बाद आपका एक्टिवेशन एनर्जी का वो जैसे ग्राफ रहता है आपका, वो ग्राफ आप करके बता सकते हैं कि स्लोप में ये आएगा वो आएगा, ठीक है, आरएनएस लॉ को लेके आप बता सकते हैं, है ना। बस यही है, और कुछ है आपको तो बताइए।